Okay, let's begin with the question and answers of SOGA. Okay, so what we'll do, आप अपने notes, keep your notes in front of you, and as and when we'll read the question, I'll tell you the page number जहाँ पर आपको ये concept मिलेगा in your notes. ठीक है? So I'll be marking the page numbers. ठीक है? Okay, let's begin with the first question. Explain the term delivery and its form under the Sale of Goods Act 1930. ठीक है? Now in your notes, come to page number 91. Page number 91. I'll write it over here. Okay? 91 पे आपको meaning of delivery और उसमें एक subheading है types of delivery. In case वहां पर एक mistake हो गया है, types of goods लिखा है, just cut it and write types of delivery. So we have already discussed what's actual delivery, symbolic and constructive delivery. ठीक है? So in short आपको थोड़ा सा introduction देना है, right? Because देखो question में क्या लिखा है? Explain the term delivery. पहले आपको delivery का term explain करना है और उसके बाद you have to write down its forms. Forms मतलब उसके types. ठीक है? So these three you have to mention as it is. And if you notice, तीनों types of deliveries में example दिया हुआ है. ठीक है? So you also have to write in a similar manner, give the introduction and write all the three types of deliveries. ठीक है? Again, this is a direct question. Next, we come to, let's question पढ़ो. Describe the consequences of destruction of goods under SOGA, where goods have been destroyed after agreement, but before sale is in fact affected. Okay, first understand this question. क्या बोल रहे हैं? Goods कब destroy हुए हैं? Goods have been destroyed after making the agreement to sell, but before the actual sale. यानी यहाँ पर मेरा बन जाता है agreement of sale, ठीक है? और यहाँ पर होता है actual sale. इसके बीच में goods have been destroyed, ठीक है? Suppose goods have been destroyed by fire. Okay, for example. ओके अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? टाइमिंग इंपॉर्टेंट है. गुड्स डिस्ट्रॉय कब हुए हैं? अग्रीमेंट के बाद पर सेल होने के पहले. ओके इन दोनों, ये जो टाइम पीरियड है इन दोनों के बीच में डिस्ट्रॉय हुए हैं. ओके अब इट्स ऑब्वियस कि भाई सेल के पहले अगर तुम्हारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है, तो सेलर के पास बेचने के लिए बचता क्या है? So will the seller sell the goods? No. Why? Because goods have been destroyed by fire even before sale. यहाँ पर देखो लिखा है word but before the sale is affected. तो सेल होने से पहले गुड्स क्या हो गए हैं? डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. ठीक है? सो आपको इसमें बस वही लिखना है that goods have been destroyed by fire, hence the contract between the buyer and seller is void. ठीक है? अब इसका प्रोविजन you will get on page number 73. So कर लो, write down page number 73. ठीक है? If you see on page number 73, last में concept है subject matter, correct? उसका last point, goods perishing before sale but after agreement to sell, section number 8. ठीक है? ओके तो बस आपको उसमें वही लिखना है कि वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं अग्रीमेंट होने के बाद बट बिफोर सेल. और रिस्क पास हुआ है क्या बायर को? नहीं. रिस्क पास कब होता है? जब पूरा सेल कंप्लीट हो जाता है. सो देखो द लास्ट लाइन सेज दैट
बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर। तो बायर के पास तो प्रॉपर्टी ही नहीं गई है, प्रॉपर्टी नहीं गई, ओनरशिप नहीं गया, तो रिस्क कहां से? ठीक है, सो these goods have been destroyed before passing it to the buyer. Okay, so the agreement is thereby avoided. मतलब फिर उस अग्रीमेंट का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें डिस्कस क्या किया था, अग्रीमेंट एंटर हो चुका था। ठीक है, फिर उसके बाद गुड्स जल गए तो सेल होगा क्या? नहीं ना, क्यों? क्योंकि गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो सेल करोगे क्या? तो लास्ट में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अग्रीमेंट बना था इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचता है। ओके, देयर बाय द अग्रीमेंट इज देयरफॉर अवॉइडेड। ठीक है, बस आपको वो लास्ट पॉइंट ही लिखना है, दैट्स इट। दिस कैन कम फॉर लाइक 2 मार्क्स और सो। ठीक है, okay, look at the next question. Again, it's a direct question. Explain the term unpaid seller. Okay, when can okay, yeah, read out the next question now. Define the term unpaid seller. Define the term unpaid seller. When can an unpaid seller exercise his right of stoppage of goods in transit? ये हमने कल भी देखा था ये वाला क्वेश्चन। कब कर सकता है? When buyer has become insolvent or bankrupt, right? Okay, this answer you will get on page number 99. Come on page number 99 and mark the answer. Right of stoppage of goods. तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा और पेज नंबर 99 पे आपको मिलेगा राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स। और एक और क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन द टर्म अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर का डेफिनेशन कहां पर है? ऑन पेज नंबर 97। पेज नंबर 97 पे आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सेलर इज सेड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन। तो आपको वो दो केसेस लिखने हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 अ सेलर इज सेड टू बी एन अनपेड सेलर। ठीक है, तो आपको पहले वो मीनिंग लिखना है और पेज नंबर 99 पे राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स लिखना है। ठीक है, सो 97 पे यू विल गेट द मीनिंग, 99 पे यू विल गेट द राइट विच दे हैव आस्क्ड फॉर। ठीक है, ओके, सो प्लीज मेक श्योर टू मार्क द पेजेस, आपके लिए भी इजी होगा। Okay, look at the next question. Again, a very direct theory question. Explain condition as to merchantability and condition as to wholesomeness. देखो सब कुछ ही डायरेक्ट पूछा है, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि दिस इज समथिंग आउट ऑफ सिलेबस। तो अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो, इफ यू हियर ऑल द रिकॉर्डिंग्स, आई डोंट थिंक यू विल फाइंड सोगा टू बी डिफिकल्ट। Soga is much easier even than Contract Act. Not that because Contract Act बहुत lengthy है, but this Sales of Good Act is something which we deal every day. ठीक है? So you will find this answer, condition as to merchantability and wholesomeness, on page number 82. तो mark कर लो, come to page number 82. ठीक है? जब भी आपको कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन पूछते हैं या कोई इम्प्लाइड वारंटी पूछते हैं, मेक श्योर टू राइट एटलीस्ट वन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट। डन। पेज नंबर 82 पे आपको मिलेगा कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी एंड एज टू होलसमनेस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी ये केस लॉ है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 7। ओके,
J, the owner of a Fiat car, wants to sell his car. So I'll write down that Mr. J, he is the seller. He is the seller of Fiat car. ठीक है, आगे क्या लिखा है? For this purpose, he handed over the car to Mr. P, who is the mercantile agent. तो Mr. P कौन है? Mr. P seller का agent है, ठीक है. और उसने एजेंट को क्या कहा था? That sell at a price not less than 50,000. तो ये सेलर ने अपने एजेंट को एक प्राइस दे दिया कि अगर तू किसी को भी बताता है कि एक फियाट कार है, सो टेल देम कि इसकी प्राइस इज नॉट लेस देन 50,000 रुपीज. ठीक है, तो अगर तुझे बेचना है सो 50,000 के ऊपर ही होना चाहिए. ठीक है, अब देखो क्या होता है. द एजेंट सेल्स द कार एट रुपीज 40,000 टू मिस्टर ए. तो अब ये ए कौन है? ए बन जाता है बायर. ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने में बेचा एजेंट ने बायर को? 40,000 में. और एजेंट को इंस्ट्रक्शंस क्या मिले थे? दैट सेल द कार एट एनी प्राइस नॉट लेस देन 50,000. और उसने बेचा कितने में? 40,000 में. ठीक है, ओके. हु बाइज द कार इन गुड फेथ. अब ए को तो ऐसा कुछ पता नहीं था, राइट? तो ए ने तो 40,000 में कार खरीद ली इन गुड फेथ. आगे क्या लिखा है? P misappropriated the money also. मतलब देखो, P ने दो गलत चीजें की हैं. कौन सी? एक तो उसने बायर को 40,000 में कार बेची, ठीक है, एक उसने वो गलती की. और यहाँ पर नेक्स्ट गलती क्या बताइए? उसने जो कैश कलेक्ट किया था वो भी क्या कर लिया? मिसअप्रोप्रिएट कर लिया. ठीक है, सो दे हैव गिवन यू टू मिस्टेक्स ऑफ द एजेंट. अच्छा, अब आगे देखो क्या लिखा है. अब J sues A. J sues A to recover the car. बस इतना ही पढ़ना है. J sues A to recover the car. मतलब अब J पकड़ किसको रहा है? बायर को पकड़ रहा है कि भाई तू मुझे कार वापस दे, क्योंकि वो एजेंट जो है, वो एजेंट जो मेरा था, ठीक है, उसने एक तो तुझे कार 40,000 में बेची, और एक तो उसने जो तुझसे कैश कलेक्ट किया वो भी उसने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया. ठीक है, देखो क्या दिया है आगे. डिसाइड गिविंग रीजंस वेदर जे वुड सक्सीड. बताओ, क्या जे ए से कार ले सकता है वापस से? क्या ए कार देगा जे को? करेक्ट. जे कैनॉट sue ए ना, बिकॉज ए कैनॉट रिकवर, जे कैनॉट रिकवर द कार फ्रॉम ए. करेक्ट, क्योंकि ए ने तो गुड फेथ में खरीदी थी, बरोबर. ए को कुछ लेना देना नहीं था उसके एजेंट से और सेलर से. सो ए परचेज द कार इन गुड फेथ. तो ए का कोई संबंध होगा क्या? नहीं. करेक्ट, एज ही टुक द कार इन गुड फेथ फ्रॉम जेज एजेंट. बरोबर. तो अब होता क्या है, अब इसमें होगा क्या आगे? अच्छा, व्हाट डू यू थिंक? चलो, एक तो आपने जजमेंट बता दिया, राइट, कि भाई ए तो कुछ नहीं करेगा. एक बोलेगा कि मैंने कार तो गुड फेथ में खरीदी, मुझसे कुछ मत पूछो. ठीक है, तो ए को तो हम पिक्चर से हटा देते हैं. ठीक है, अब आपके हिसाब से अब होगा क्या? व्हाट विल हैपन? P will be liable for the payment of loss suffered by J. Very correct. तो मतलब आपको आंसर कैसे लिखना है कि भाई ए तो चला गया, ए तो पिक्चर में ही नहीं है, तो ए की तो बात ही मत करो, राइट. एंड अब लीस्ट टू लीस्ट सेलर ए से पैसे वापस ले लेगा, ठीक है, जो उसने मिसअप्रोप्रिएट किए थे. ठीक है, बस आपको दो चीजें लिखनी है. फर्स्ट ये लिखना है, आई शो यू द आंसर ऑल्सो. फर्स्ट आपको ये लिखना है, ये पॉइंट, कि भाई ए का तो कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये परचेज द कार इन गुड फेथ. और सेकंड चीज क्या लिखनी है? दैट एजेंट इज लाइबल टू पे बैक द मनी टू द सेलर. ठीक है, आई शो यू द आंसर. फर्स्ट लेट अस कंप्लीट द नेक्स्ट आंसर. इट्स अगेन अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. सो पॉइंट बीइंग कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ केस लॉ पूछते हैं, ठीक है, तो जल्दबाजी में पूरा केस लॉ पढ़ने की कोशिश मत करना. जैसे अभी मैंने यहाँ पर फ्रेम किया था, जे इज द सेलर, फिर ये पी एजेंट है, राइट. सो समवेयर इन योर मार्जिन, यू नो, ट्राई टू मेक दीज थिंग्स.
ठीक है, तो आपके लिए भी आसान होगा कि कौन किसको बेच रहा है, एजेंट कौन है। कभी कभी हम नाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर तो फिर भी दे हैव गिवन JPA व्हाटएवर। ठीक है, एग्जाम में तो से दे माइट गिव यू बिग बिग नेम्स टू जस्ट कंफ्यूज एंड सो दैट आपका टाइम और कंज्यूम हो। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू नॉट रीड द एंटायर केस लॉ इन वन गो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द टर्म caveat emptor, what are the exceptions to the rule। ये भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। caveat emptor का मतलब क्या होता है? Tell me, what is the meaning of caveat emptor? Let the buyer be aware, correct। Write down this, you will find on page number 83। तो आपको पहले caveat emptor का मीनिंग लिखना है और उसके फिर सारे एक्सेप्शंस लिखने हैं, करेक्ट। So you can come to page number 83 and mark caveat emptor as important। कितने हैं इसमें एक्सेप्शंस? 1 2 3 4 5 6। So there are 9 total exceptions, you can write any 5। ठीक है, 5, you can go for any 5। और बाकी you write 5, explain 5 exceptions। और बाकी के भी अगर आपको हेडिंग याद है तो you can just simply write down the heading। ठीक है, this will come for 4 marks, caveat emptor और उसके exceptions। 6 marks के लिए तो नहीं आएगा, 4 marks के लिए आ सकता है। Any 4 or any 5? Yeah, any 5। मैक्सिमम मार्क्स कितने रहते हैं एक क्वेश्चन के लिए? 6 मार्क्स। 6 मार्क्स इज द मैक्सिमम। ठीक है, इफ यू वांट जस्ट मार्क अप दीज आंसर्स, अगर आपका कोई रह गया होगा तो। एंड आई शो यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो केस लॉ है 7 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, सो आई शो यू द आंसर फॉर दैट। जस्ट सी हैव यू मार्क्ड ऑल द आंसर्स। डन। ओके, नाउ आई शो यू द आंसर, उसको प्लीज रीड कर लेना एक बार। यस, रीड द आंसर। मेक श्योर ये कंक्लूजन आना चाहिए, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। पढ़ लो एक बार। इन द इंस्टेंस केस P, who is the agent, was in possession of the car with J's consent. A, the buyer therefore obtained the car in good title, good faith. Hence, J in this case cannot recover the car from A. अब यहाँ पर आपको ये जो 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपको एजेंट के ड्यूटीज बताने हैं। आप डायरेक्टली अपना कंक्लूजन नहीं लिख सकते हो। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट that you will get good marks just if you write the conclusion। फिर आपका conclusion कितना भी सही क्यों ना हो। ठीक है, तो एजेंट यहाँ पर दिया है, सो फर्स्ट मेंशन द ड्यूटीज ऑफ द एजेंट।
ये जो ड्यूटीज हैं, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 89, यू कैन मार्क इट। पेज नंबर 89 पे एजेंट के ड्यूटीज बताए हैं। जो जनरल रूल है नीमो दैट क्विड नॉन हैबिट, उसका फर्स्ट एक्सेप्शन है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, एंड देयर दे हैव गिवन यू सम 3 to 4 ड्यूटीज विच यू हैव टू फर्स्ट राइट इट, और फिर आप अपना कंक्लूजन फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, डन। Now there's one more list of questions. We'll just see those as well. Okay. पहले quickly we'll mark the direct questions, फिर हम case laws देखते हैं। ठीक है? Okay. Look at this one. Question 5 में second वाला. Referring to the provisions of Sale of Goods Act 1930, state the rules to regulate the sale by auction. ठीक है, अगेन पूरा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, सेल बाय ऑक्शन पूछा है। यू कैन फाइंड दिस आंसर ऑन पेज नंबर 103। पेज नंबर 103 पे सेल बाय ऑक्शन के रूल्स दिए हैं। ठीक है, पेज नंबर 103। फर्स्ट यू हैव टू मेंशन अ बिट ऑफ 3 to 4 लाइंस ऑफ इंट्रोडक्शन कि ऑक्शनर कौन होता है, कौन सी कमोडिटीज हम सेल करते हैं ऑक्शन में, राइट और फिर आई थिंक देयर आर 6 to 7 रूल्स, बस एज इट इज वो लिख लो। अगर आप उसका सिर्फ सब हेडिंग भी लर्न करके जाते हो, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंटेंट, उसका कंटेक्स्ट क्या है, एंड इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द जिस्ट पार्ट ऑफ इट, देन यू कैन फ्रेम इट इन योर ओन सेंटेंसेस एज वेल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हमने कल देखे थे और दीज वंस, दे ऑल आर फ्रॉम योर रिसोर्स बुक। ठीक है, लॉ रिसोर्स बुक। ओके, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसका क्वेश्चन 2, ये हमने कल भी देखा था। State briefly the essential elements of contract of sale. ये सबसे आसान क्वेश्चन है। Again, this you can find on page number 68. राइट, कल देखा था हमने, 2 parties होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, करेक्ट। All other essentials should be complied with, should be followed. It can be absolute or it can be conditional, right? ये कुछ 5 to 6 points थे essentials के। By looking at these answers, you should realize that मेजरली डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। ठीक है, सो डू नॉट मिस ऑन टू इट, बिकॉज ना अगर ऐसा होता है ना, अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो यू नो एंड देन यू वोंट बी एबल टू राइट इट, आप थोड़ा बस फेंक के आ जाओगे और क्या ही लिखोगे, राइट। बट आपको ना इतना गिल्ट फील नहीं होगा। बट अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है विच इज देयर इन योर नोट्स, विच यू हैव स्टडीड अबाउट, बट लास्ट मोमेंट रिवीजन नहीं हुआ, या यू नो लास्ट के दिनों में आपने वो पढ़ा नहीं था, यू नॉट एबल टू रिमेम्बर, या आपने यू नो इंटेंशनली स्किप किया उसको, तो उसका रिग्रेट कुछ और ही है। ठीक है, एंड आई हैव बीन थ्रू सच रिग्रेट्स, सो that's the reason why I always keep telling you that the law portion, the 60 marks, consider them that they are in your hands. ठीक है, okay,
Look at the next question, question number 7. पढ़ो क्या लिखा है. There is no implied warranty or condition as to quality or fitness. बस यहाँ तक भी पढ़ा तो आपको क्या समझ आता है कि बस क्वालिटी और फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं. हमारे पास एज इट इज इम्प्लाइड कंडीशन में क्वालिटी और फिटनेस का पॉइंट दिया है. डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड स्टेट एक्सेप्शंस इफ एनी. एज इट इज जो 3-4 पॉइंट्स दिए हैं ऑन पेज नंबर 81. मार्केट पेज नंबर 81 पे क्वालिटी और फिटनेस की बात की है. पॉइंट नंबर 5 है ऑन पेज नंबर 81, क्वालिटी और फिटनेस. अब उसके अंदर कुछ 4 points you have been given and you have been given one example, water, hot water bottle का. ठीक है, बस एज इट इज वो लिखना है कि अगर ट्रेड नेम होता है या अगर आप सेलर के ऊपर रिलाई करते हो या आप उन्हें डिस्क्लोज नहीं करते हो कि आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो. राइट, ऑल दीज 4 points have been given. Section 16 subsection 1. Do not learn the sections. ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसका बस उसका लोड मत लेना. अगर खुद से लर्न होता है एंड इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग तो फिर कर लो, वरना कोई प्रेशर नहीं है. ठीक है, ना ही उसके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं और ना ही नहीं लिखोगे तो मार्क्स भी कट नहीं होंगे. ठीक है, सो आई एम जस्ट सेइंग इट फ्रॉम दोनों तरफ से. दिस क्वेश्चन इज अ गुड इम्पोर्टेंट थियोरी क्वेश्चन, ये वाला 7th वाला. ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट थियोरी क्वेश्चन में मार्क कर सकते हो एंड दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स. ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं तो आराम से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. ठीक है, रीड द लास्ट क्वेश्चन. क्या दिया हुआ है? एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम राइट ऑफ स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट. एज इट इज आपकी बुक में है. कम टू पेज नंबर 98 एंड 99. पेज नंबर 98 और 99 पे आपको डिफरेंस दिया है. ये मैंने आपको टेस्ट में भी पूछा था, इफ यू रिमेम्बर. राइट ऑफ लीन का आपको पूरा लिखना है एंड देन फिर आपको उसको डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. ठीक है, आपको डिफरेंस भी दिया है ऑन पेज नंबर 99 और राइट ऑफ लीन इज ऑन पेज. डन. 99 एंड 100 पे कंटिन्यू होता है डिफरेंस. करेक्ट. मम्मा बड़े पापा जो फोन पे उसे इनके फोन कर. ठीक. डन. So up or there are 2 case laws. We'll quickly see those also. I hope you're done marking. Okay, look at the first one. Question 5 में first वाला. Ram consults Shyam, a motor car dealer, for a car which is suitable for touring purposes to promote the product. ठीक है. Shyam suggests Maruti and Ram accordingly buys it from Shyam. ठीक है. First we'll write down the names and we'll understand. Ram and Shyam. ठीक है, राम कंसल्ट श्याम. तो राम यहाँ पर कौन बन जाता है? देखो यहाँ पर लिखा है राम अकॉर्डिंगली बाइज इट, तो मतलब राम कौन है? इज द बायर एंड श्याम इज द सेलर. ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पर? राम स्पेसिफिकली आस्क्ड श्याम कि भाई मुझे तू एक ऐसी कार बता विच इज सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पसेस. which is suitable for touring purposes. Correct? अब श्याम को पता है कि राम को ऐसी कार चाहिए
which is suitable for touring purposes. तो श्याम ने क्या बोला उसे? Go for Maruti, correct? अच्छा देखो अब आगे क्या हुआ. तो राम ने उसकी एडवाइस मान ली. राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम. उसने गाड़ी भी श्याम से ही खरीदी थी, ठीक है, बिकॉज श्याम इज द सेलर. ओके. द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पसेस. व्हाट रेमेडी राम इज हैविंग नाउ अंडर सोगा? तो ये मारुति कार खरीदने के बाद राम को पता चलता है दैट दिस कार इज अनफिट. अनफिट फॉर व्हाट? अनफिट फॉर टूरिंग पर्पसेस. तो अब बताओ राम के पास कौन सी रेमेडी है? क्या करेगा अब राम? टेल मी. All facts are clear. So according to your answers, यहाँ पर क्या दिया है आपको, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से इंपॉर्टेंट है. राम, इसने बताया था इसको that he wants it for touring purposes. He had mentioned his purpose और उसके बाद he relied on the seller. ठीक है, अब यहाँ पर सेलर कौन था? श्याम था. तो अब after purchasing the car, राम finds the car to be unfit for touring purposes. तो इसमें लाइबिलिटी किसकी होती है? लाइबिलिटी होती है सेलर की. तो यहाँ पर क्या एक ही रेमेडी है? ही विल रिटर्न द कार टू द श्याम और श्याम इसे रिफंड दे देगा. ठीक है, ही विल रिटर्न द कार टू श्याम बिकॉज राम बीइंग द बायर ही स्पेसिफाइड टू द सेलर दैट फॉर विच पर्पसेस ही नीड्स द कार. उसने उसे बताया था, डिस्क्लोज किया था. उसके बाद ही रिलाइड ऑन श्याम to give him that particular car which suits his purpose, and after purchasing it he finds it to be unfit. लिखा है यहाँ पर the car turns out to be unfit, correct? तो रेमेडी एक ही है कि राम उसे कार दे देगा और श्याम से रिफंड ले लेगा. क्लियर है? ओके. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता, सपोजिटली टेक द सेम क्वेश्चन, ठीक है, नाउ आई एम जस्ट चेंजिंग द फैक्ट्स. राम श्याम. Ram asks for a car without disclosing the purpose. Purpose वो अपना नहीं बताता है और श्याम ने उसे मारुति सेल कर ली. बाद में राम को पता चलता है that it is unfit. So can Ram return the car to Shyam? No, right? Why? Because यहाँ पर राम ने अपना purpose नहीं disclose किया था. He cannot do anything. Ram has to keep the car. Very correct. क्योंकि उसने पर्पस डिस्क्लोज नहीं किया है ना, तो सेलर को सपने तो नहीं पड़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर राम हैज एब्सोल्युटली जीरो रेमेडी एंड ही हैज टू एक्सेप्ट द कार. ही कैन नॉट रिजेक्ट द कार. ही कैन नॉट गेट रिफंड फ्रॉम श्याम. ठीक है, तो कौन सी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे आपका पूरा आंसर बदलता है? विच इज सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पसेस टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट. ये उसने बताया था. ठीक है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट वेदर the purpose has been disclosed or not. डिस्क्लोज किया है तो अलग आंसर आता है, डिस्क्लोज नहीं किया है तो अलग आंसर आता है. ठीक है, we have discussed both. okay, last answer. this is an important answer. ठीक है, referring to the provisions of SOGA, state the circumstances under which when goods are delivered to the buyer on sale or approval basis. ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस अलग से पूछे हैं. एक ये क्वेश्चन है और यहाँ पर एक आपको केस स्टडी दी है. दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर डायरेक्ट 6 मार्क्स. ठीक है, चलो पहले हम फर्स्ट पार्ट पर आते हैं. आपको यहाँ पर क्या पूछा है? रिफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सोगा स्टेट द सर्कमस्टेंसेस. स्टेट मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट हाफ में आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. स्टेट द सर्कमस्टेंसेस under which goods are delivered to the buyer on sale or approval basis. तो इसका आंसर पेज नंबर लिख लो. This is given on page number 88. Come to page number 88. You have been given 3 different circumstances, correct?
नीचे वाले 3 सर्कमस्टेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट. फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल के बाद वाले जो 3 हैं, इफ मिस्टर बी प्लेजेस, इफ मिस्टर ए मेक्स इट क्लियर, इफ मिस्टर बी नीदर एक्सेप्ट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 सेपरेट केसेस. ठीक है, ये आपको लिखने हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द आंसर. तो पहले आपको एग्जाम्पल मेंशन करना है और उसके बाद ये 3 सेपरेट केसेस लिखने हैं. ठीक है, नाउ let us talk about the second half of the answer, which talks about the case law. Okay, क्या लिखा है? Miss Preeti is the owner of a motor car which she handed over to Mr. Joshi. ठीक है, तो अभी हम we'll write down the names. Miss Preeti, Preeti, ठीक है, और she handed over the car to Joshi. तो यहाँ पर प्रीति बन जाती है सेलर, जोशी इज द बायर. ठीक है, आपको लिखना है ऐसे. ओके, आगे क्या होता है? ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. तो यहाँ पर प्रीति ने जोशी को सेल और रिटर्न बेसिस, अप्रूवल बेसिस पे मोटर कार दी है. ठीक है, आगे लेट्स रीड. आफ्टर अ वीक मिस्टर जोशी प्लेज्ड द मोटर कार टू गणेश. तो अब पोजेशन किसके पास है कार की? प्रीति ने जोशी को दे दी थी. करेक्ट. आगे क्या बताया है कि जोशी ने गणेश को दे दी कार. कैसे दी? थ्रू प्लेज. ठीक है, थ्रू प्लेज. ओके, हम अब तक सिर्फ फैक्ट्स ही पढ़ रहे हैं. दैट प्रीति गेव द कार टू जोशी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. देन जोशी गेव द कार टू गणेश एज प्लेज. ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है. यहाँ पर क्या लिखा था? जोशी प्लेज द कार टू, ठीक है, टू गणेश. ठीक है, आगे मिस प्रीति नाउ क्लेम्स बैक द मोटर कार फ्रॉम गणेश. विल शी सक्सीड? फर्स्ट इतना क्वेश्चन है. क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं कि अब ये जो प्रीति है ना, ये गणेश से कार वापस मांग रही है. विल शी सक्सीड? क्वेश्चन मार्क. बताओ. देखो, अपेरेंटली अब पोजेशन किसके पास है कार की? गणेश के पास है. करेक्ट. प्रीति ने किसको दिया था कार? जोशी को दिया था. जोशी ने किसको दिया? गणेश को दिया. तो पोजेशन किसके पास है? गणेश के पास है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं? दैट कैन मिस प्रीति क्लेम द मोटर कार फ्रॉम मिस्टर गणेश? विल शी सक्सीड? बताओ. Will she succeed? We are clear with one more fact. I'll write down one more fact that ownership is still with Miss Preeti. इसमें तो खैर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. हम सिर्फ ओनरशिप की बात कर रहे हैं. ठीक है, और हमको इतना भी पता है रेफरिंग टू द एंटायर स्ट्रक्चर कि भाई अब करंटली पोजेशन किसके पास है? गणेश के पास है. ठीक है, चलो, तो ओनरशिप और पोजेशन किस किस के पास है ये भी क्लियर हो जाता है. ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज टू फैक्ट्स, can we say that Miss Preeti can claim the car from Ganesh? What do you think? Preeti recover from Joshi? पैसे देखो यहाँ पर लिखा है. Since Mr. Joshi had taken the delivery of the car on sale or return basis, pledged the car to Mr. Ganesh, ठीक है, has attracted the third condition. Third condition क्या है? When you do something which is equivalent to accepting, example pledge or sale. ठीक है, that he has done something which is equivalent to accept. For example, therefore the property passes to Mr. Joshi. Now in this situation, Miss Preeti cannot claim back the car from Ganesh, but she can claim the price of the motor car from Joshi only. तो ये जोशी से सिर्फ पैसे ले सकती है, कार नहीं ले सकती है, क्योंकि कार अब एक्चुअली जोशी की हो जाती है. क्यों? क्योंकि जोशी ने थर्ड कंडीशन को अट्रैक्ट किया है, दैट इज ही हैज प्लेज्ड
द कार। तो आप अगर किसी को गिरवी रख देते हो, सो समवेयर यू आर इम्प्लाइंग कि भाई ये जो कार है ये मेरी है। तो मैक्स टू मैक्स प्रीति क्या कर सकती है, प्रीति जोशी से प्राइज ले सकती है कार का, और कार नहीं ले सकती है बिकॉज जोशी नाउ हैज ऑलरेडी प्लेज्ड इट टू समवन एल्स, प्लेज्ड इट टू गणेश, करेक्ट। तो लिखा क्या है, एंड शी कैन क्लेम द प्राइज ऑफ द कार फ्रॉम मिस्टर जोशी ओनली। मतलब क्या गणेश से कुछ ले सकती है क्या वो? नहीं। इसलिए यहाँ पर वर्ड ओनली लिखा है कि गणेश और प्रीति का कोई कनेक्शन नहीं है। एंड इट्स ऑल्सो रिटन दैट मिस प्रीति कैन नॉट क्लेम बैक the motor car from Mr. Ganesh. She can only claim the prize from Joshi. ठीक है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, ये जो 3 ऊपर के कंडीशंस हैं, यू हैव टू राइट दीज कंडीशंस, नॉट द वंस व्हिच आर गिवन एग्जांपल्स के नीचे। जो एग्जांपल के ऊपर दिया है पेज नंबर 88 पर, द फर्स्ट 3 कंडीशंस यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है, एग्जांपल वाले नहीं लिखने हैं। एग्जाम्पल से उन्होंने ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्रिएट किया है। यू हैव टू राइट द फर्स्ट 3 कंडीशंस। ओके, सो आज के क्वेश्चंस इंक्लूड करके एंड द क्वेश्चंस व्हिच वी डिस्कस्ड यस्टरडे, इट कम्स टू अ टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 18-20 क्वेश्चंस हो गए होंगे। एंड इफ यू सी, पूरा ही चैप्टर कवर हो जाता है इससे। So, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो जाते हैं एंड वी हैव सीन द केस लॉज आल्सो। 7th वाला क्या था? 7th वाला क्वालिटी और फिटनेस वाला था ना। तो वो तो मैंने बताया ना आपको, क्वालिटी और फिटनेस के आपको सारे कंडीशंस लिखने हैं। एज इट इज यू हैव टू राइट डाउन। एंड आई थिंक दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई केस लॉ नहीं था वो। इट्स फ्रॉम यूनिट 2 पेज नंबर 81, इम्प्लाइड कंडीशन और उसके एक्सेप्शंस पूछे हैं। ओके, एक्सेप्शन ना इसके अंदर ही होगा। वेट, आई टेल यू द लाइन आल्सो। ठीक है, अब देखो पेज नंबर 88 पे इम्प्लाइड कंडीशन 5th पॉइंट। ठीक है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस सेक्शन 16। अब देखो, जब यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, क्वालिटी और फिटनेस के कंडीशंस एक्सेप्शंस बताओ, करेक्ट। अब देखो, रीड उसका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। If the buyer who's purchasing an article is suffering from any abnormality and it is not made known to the seller, implied condition of fitness does not apply. तो exception का मतलब क्या? ऐसे points बताओ जहां पर quality और fitness apply नहीं होगा। ठीक है, तो if you read point number 2, तो उसमें लास्ट में क्या दिया है कि सपोज, मैंने आपको वो रिकॉर्डिंग में एग्जांपल भी दिया था, I'll just repeat it again, that suppose if you are suffering from any स्किन एलर्जी, ठीक है, और आप जाके वो सेलर को बताते हो कि मुझे भाई कोई ऐसी क्रीम बताओ, ठीक है, बट ना आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्किन एलर्जी, ठीक है, क्रीम वाला, करेक्ट। तो आप उसे नहीं बताते हो। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, यू आर सफरिंग फ्रॉम abnormality एंड इट इज नॉट मेड नोन टू द सेलर। तो उस केस में इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसे डिस्क्लोज नहीं किया। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, कि क्वालिटी और फिटनेस के ऐसे एक्सेप्शंस बताओ जहां पर क्वालिटी और फिटनेस अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हो तो फिर उस केस में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में भी ऐसा कुछ है, देखो, इन केस द गुड्स कैन बी यूज फॉर नंबर ऑफ रीजंस। ये हमने कल केस लॉ पढ़ा था इसके ऊपर, वो यूनिफॉर्म वाला, राइट। तो अगर कुछ ऐसा गुड्स है which can be used for number of reasons, the buyer must tell the seller the reason. If he does not, he cannot hold the seller liable. ठीक है, तो अगर वो उसे पर्पस नहीं बताता है तो उस केस में क्वालिटी और फिटनेस वाला कंडीशन अप्लाई होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सेप्शंस। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो दैट इज द रीजन मैंने आपको फर्स्ट गो में ही बोला कि आपको ऑल 4 कंडीशंस लिखने हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ।
So please listen to the recordings. I think majorly I've cleared everything. अब questions देख के आपको भी पता चल गया होगा कि which are the important theory questions, और अगर case laws आते हैं तो कैसे आते हैं. In the meantime, if I find some other questions as well, and if I find them to be important, I'll keep sending them in your group. ठीक है? And also, just because the batch is getting completed, please don't consider that, you know, I won't be there or I won't be available. You can call me anytime. ठीक है? And same applies for, you can text me. आप मुझे अगर आपका कोई डाउट है तो वो भेज सकते हो. ठीक है? I'll clear it to my soonest. बट जस्ट मेक श्योर कि क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा है और उसके वजह से आप वो अपने सिलेबस में से ही ओमिट कर देते हो. तो वो बात नहीं होनी चाहिए. ठीक है? एटलीस्ट अगर आप लर्न नहीं कर रहे हो बट एटलीस्ट आपका डाउट क्लियर है, और अगर वो आ जाता है, ठीक है, तो यू कैन एटलीस्ट राइट समथिंग. हाँ, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये थे ना, कुछ एक्स्ट्रा केस लॉस थे जो आपने मुझे बताए थे, विच आर फ्रॉम मॉड्यूल. ओके, नाउ द थिंग विच आई हैव प्लान्ड कि कुछ, फर्स्टली आई रेड दोस केस लॉस. ठीक है, जो अनन्या आपने मुझे व्हाट्सएप किए थे. कुछ कुछ ऐसे भी केस लॉज हैं विच वी हैव डिस्कस्ड द सेम कंटेंट बट विद अ डिफरेंट साइटेशन. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा साइटेशन है जो हमने पढ़ा है ए वर्सेस बी. ठीक है, और उसका हमने पूरे फैक्ट्स, इशू, डिसीजन सब पढ़ा है. तो कुछ कुछ वो जो आपने मुझे फोटोज भेजे हैं, एग्जैक्टली सेम फैक्ट्स, इशू, डिसीजन है, बट उसका साइटेशन कुछ और है. ठीक है, so I just need a little bit more of time to classify that which are repeated ones and which are new ones, और new ones में से भी कौन से important है. तो what I'm planning to do कि एक बार say somewhat in the mid of October or maybe in the start of October हम थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का. ठीक है, और at that time we'll discuss those case laws, क्योंकि अब पढ़ के खैर कुछ मतलब है भी नहीं. what is required of you all now कि आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो. ठीक है, केस लॉज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और स्पेसिफिकली आपको एग्जाम में ना ऐसे डायरेक्टली साइटेशन नहीं पूछेंगे दैट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन ए वर्सेस बी केस. आपको ऐसा नहीं पूछेंगे. ठीक है, बस तो वो आपको रेफरेंस के लिए काम आएगा ये. ठीक है, सो वील डू द एक्स्ट्रा केस लॉज एट दैट टाइम. तभी कर लेंगे तो आपको ज्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा. ठीक है, क्योंकि आई एम गेसिंग एंड अज्यूमिंग एंड होपिंग that you will cover your syllabus at least twice before the month of October. ठीक है, complete, when I say complete that means at least you have read it thoroughly. ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज मैसेज कर लेना.